Okay, bete. So today I have made one special presentation for the celebration of 5th June, and 5th June is observed as World Environment Day every year in world. So this time again June 5th is observed as World Environment Day, and a special slogan is created by the specialist environmentalist this time, and that is reimagine, recreate and restore. ठीक है, तो this slogan actually means कि we have to reimagine the things that what we have done, what we have do bad to our environment, and how can we make our environment again healthy for us, or you can say in other words, for our healthy living, how can we restore our environment, how can we recreate the things. So here I have made a small presentation for you. Okay, student, why there is a need to protect the environment? So here he has written some of the lines that create awareness in you, and that is that every life form is unique and has intrinsic value. Okay, if we think that we are the important beings on this earth, and that is not only the case. Every living organism who is living along with us, he is equally as important as we all are. ओके तो लिखा है उसने कि हर एक लाइफ फॉर्म जो है वो यूनिक है और हर एक की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है. तो वी शुड मस्ट रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज टू. ओके, so we should have a profound respect for the nature too, because nature is giving us so many things, and we should be thankful to the nature for all of the things we are utilizing in our life day to day. Okay, but we must maintain a harmonious relationship with other species, because we are not only the first who has entered this planet Earth. There are so many species who start living with us from the evolution of the Earth. So we should maintain a harmonious relationship with these species. Okay, but we should have take responsibility for his impact on nature. Every organism must aware that what are the various kind of things he has done to the environment. So if we have done something bad to our environment, then it is our responsibility that we should reduce to those impacts, so that we can make our environment healthy for us as well as other species. Okay, but we should also have respect for the local and indigenous environmental knowledge. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि there are some of the people who have more knowledge as compared to us, that how can we protect our environment, how can we make sustainable use of our resources. तो हमें उन सभी लोगों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, उन लोकल पीपल्स की, ट्राइबल कम्युनिटीज की, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक बेटे. अनदर थिंग इज कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, हमने लॉन्ग टर्म जो है प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है. ठीक है. तो डे बाय डे वी आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट. तो कहते हैं कि इफ वी आर टेकिंग सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो इट इज आवर responsibility that we should take steps for the protection of this environment, so that not only we are taking benefit from this environment, our future generation they are also supposed to take. Okay बेटे. अब वो कहता है कि environment जो है उसका restoration जो है वो जरूरी है, तो इसीलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसको ऑब्जर्व किया गया, एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डिसाइड किया कि 5th जून जो है उसको एवरी ईयर जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसके फॉर्म में हम सेलिब्रेट करेंगे. ओके बेटे. तो फर्स्ट टाइम द सेलिब्रेशन इट बिगैन्स इन 1972, और इसमें वो कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था हमारे यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का, वो था कि लोगों को इनकरेज करना है, ठीक है, so that they take positive action for the protection of the environment. So World Environment Day is every year a big celebration, and it engaged millions of people all over the world and all over the globe. So many, you can say, activities and that is related with the protection of the environment, they are done in
many countries, ठीक है, तो hundreds of countries जो वर्ल्ड के अंदर है उसमें इस डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, ठीक है। तो हर टाइम हर ईयर जो है डिफरेंट पार्टिसिपेट्स, चाहे वो यंग हैं ओल्ड हैं, दे ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स। तो सो मेनी कैंपेन्स आर देयर, ठीक है, आर्ट एग्जिबिट्स, आर्ट एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स जो है उनको फुलफिल किया जाता है, कॉन्सर्ट्स आर देयर, ठीक है, डांस रिसाइटल्स आर देयर, रिसाइकलिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है लोगों में, ठीक बेटे। सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया के जरिए पोस्टर्स जो हैं या फिर स्लोगन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, लोगों को सेंड किए जाते हैं, सो दैट अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू फॉर द केयर ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ। Okay, but the slogan this year which is taken by United Nation, तो इस टाइम जो स्लोगन रखा गया है 2020-21 के अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर, ठीक है। वी हैव टू इमेजिन द थिंग्स that how can we create a healthy environment for all the species who are living on this planet Earth, ठीक है। We should create more and more opportunities for the healthy environment, ठीक है, for the various aspects that are related with environment. It may be wildlife, it may be the precautions that are related for ozone layer depletion, it may be reduce the use of chlorofluorocarbons, ठीक है, deforestation को कैसे कम करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में वो कहते हैं कि एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, ठीक है। We should also restore the things whatever we have done badly to our environment or whatever harms we have do to our environment, we should restore those things so that we can make our environment healthy for the well-being of or the welfare of the living beings. Okay, but a celebration of this day provides us an opportunity to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by the individuals, enterprises, communities in preserving and enhancing the environment. तो कहते हैं कि इस डे को मनाने का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है हमारे पास, वो ये है कि हम हर एक सिंगल इंडिविजुअल को, हर एक एंटरप्राइजेस को, कम्युनिटीज को ये अवेयर करना चाहते हैं कि क्यों एनवायरनमेंट जो है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना जो है वो जरूरी है, ठीक बेटे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है एक्चुअली? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल लेवल फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस, ठीक बेटे। तो कहते हैं कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो हर एक पर्सन जो है इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसने हर ऐसे स्टेप्स जो है उनको फॉलो करने हैं जिससे हम नेचुरल जो भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनको हम जो है ओवरकम कर सके, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो एनवायरनमेंट को जो हार्म पहुंचाते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स it comes under environment protection. Okay बेटे, तो next is objectives क्या हैं? तो देखिए, protect and enhance the quality of the air resources. You know that कि air pollution is increasing day by day because we are very much dependent on use of different means of communications, ठीक है। तो उसकी वजह से एयर की क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो रही है। तो कहते हैं कि हमें एयर क्वालिटी जो है उसको किस तरह से प्यूरिफाई करना है उसके बारे में हमें लोगों को बताना जरूरी है, ठीक बेटे। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करना भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक मेन एम है। एंड वी आल्सो हैव टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अवॉइड एयर पोल्यूशन, ठीक है, नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, okay bete, any kind of pollution, it may be the pollution of the soil. We should also have to focus on the things that how can we prevent such type of pollutions, and gives power to the board for ensuring that there are proper systems for the prevention of the air pollution. Time to time air की जो deteriorate quality है उसको purify करने के लिए we have to construct some boards, some organizations जो proper steps लेंगी, precautions लेंगी कि किस तरह से हम air जो है उसको purify कर सकते हैं। Okay, so here I am showing you one
slide that is related with the different acts, ठीक है, that are framed in world as well as India time to time. So first of all, I am talking about the Environment Acts in India that was introduced by Indian government time to time. So in the year 1981, the Air Prevention and Control of Pollution Act was introduced, and it was amended in the year 1988 again. ओके बेटे, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1974, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारी, उन सभी को जो है हमने उसमें जो भी वाटर है उसको हमने पॉल्यूशन से बचाना है. और अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो उसके लिए हमने जो है स्कीम्स बनानी है कि हाउ कैन वी प्यूरिफाई द पॉल्यूटेड वाटर्स ऑफ आवर रिवर्स, जो कि हमारी लाइफ सेविंग यूनिट्स हैं. ठीक बेटे, हैजार्डियस वेस्ट एक्ट, जिसके अंदर उस वेस्ट को किस तरह से डिकम्पोज करना है या उसकी डंपिंग कैसे करनी है जो हैजार्डियस वेस्ट है. इट मे बी द रेडियो एक्टिव वेस्ट, इट मे बी ई वेस्ट. ठीक है, नाउअडेज वी आर यूजिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ऑल द टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसकी वजह से जो वेस्ट जनरेट होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं. तो उसके लिए 1989 में एक एक्ट बनाया गया जिसे हैजार्डियस वेस्ट एक्ट बोला गया. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक बेटे, इसमें बोला गया है कि वाइल्ड लाइफ जो है उसका प्रोटेक्शन जो है दैट इज आल्सो आवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी. वी शुड नॉट डू एनी हार्म टू द वाइल्ड एनिमल्स, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट्स, वी शुड नॉट डू सम ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज which can cause harm to these wild species, because every species has a right to live on this earth. ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमें ये कहता है कि ट्रीज जो है हमें जो है ज्यादा से ज्यादा लगाना है. वी शुड प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन, वी शुड encourage the aim of reforestation. So this act was introduced in the year 1980 and amended in 1988. ओके बेटे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं. उसके बाद देखिए, व्हाट आर आवर सजेशन दैट हाउ कैन वी सेव आवर प्लैनेट अर्थ फॉर आवर एनवायरमेंट. But there are so many simple things that we must take it in our mind. We should conserve water. ठीक है, हमें वाटर जो है उसको कंजर्व करना है, हमने वाटर उतना ही यूज करना है जितना हमें रिक्वायर्ड है. ओके बेटे, तो वी हैव एक्सप्लेन्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कंजर्व वाटर. वी शुड कंजर्व एनर्जी, हमें एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमको कंजर्व करने हैं, और हमें ऐसे रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज एनर्जी के इंट्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जिन्हें हम बार बार जो है रिन्यू कर सकते हैं. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. ठीक है, nowadays when you visit urban areas, what you see, there are no trees there. So that if there are less number of trees and rainfall is also very less, तो मॉनसून सीजन जो है वो हमारे खाली चले जाते हैं. एंड एग्रीकल्चर जो है उसके लिए मॉनसून बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज मॉनसून कंट्री है इंडिया. ठीक बेटे, तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स अदरवाइज ग्राउंड वाटर यूज करेंगे, जिससे वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा. रिसाइकल द वेस्ट, हमें वेस्ट को रिसाइकल करना है. ठीक है, जिस तक हो सके, जिस हद तक हो सके, वी शुड रिसाइकलिंग शुड बी डन फॉर द वेस्ट. एंड बैन द पॉलीथीन, बिकॉज यू नो दैट कि पॉलीथीन जो है वो बहुत ज्यादा हैजार्डियस केमिकल्स के अंदर आता है. ठीक है, उसका अगर आप मीनिंग देखोगे तो पॉली मीन्स मैनी एंड थीन मीन्स 18 यूनिट्स. तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ब्रेकडाउन जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं है. एंड वी शुड मेक यूज ऑफ मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक बेटे, हाउ कैन वी सेव वाटर, तो उसमें उसने आपको जनरल चीजें बताई हैं कि फ्लश में हम बहुत ज्यादा वाटर जो है इसको यूज करते हैं. तो नाउअडेज इन द सदर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया a special type of toilets are there which are known as eco sand toilets. तो इको सैंड टॉयलेट्स जो हैं उसके अंदर ड्राई वेस्ट जो है उसको ड्राई कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर का बहुत लेस यूज होता है. सो दिस टाइप ऑफ टॉयलेट शुड बी एनकरेज्ड. ओके बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें जो है ये अपने माइंड में रखना है कि वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स, जबकि अर्थ जो है इस पे 1/3 जो वाटर प्रेजेंट है, पर फिर भी वी शुड टेक इट इन आवर माइंड दैट वी मस्ट हैव टू प्रिजर्व वाटर, कंजर्व वाटर. ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज, जिससे कि हम अपना वाटर जो है वो वेस्ट करते रहते हैं. छोटी छोटी एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है. तो लोअर क्लासेस में आपको बताते होते थे कि इंस्टेड ऑफ वॉशिंग योर फ्लोर यू हैव टू डन द मॉपिंग ऑफ द फ्लोर, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, इफ यू टेक ओनली 1 or 2 buckets फॉर बेथिंग देन इट इज इनफ. ठीक बेटे, तो उसके लिए जो है आपको, अगर आपका 1 बकेट से चल रहा है तो आपको जो है शावर लेने के लिए जो है ध्यान रखना है कि हाउ मच वाटर यू नीड और यू रिक्वायर्ड.
ओके बेटे, तो एनवायरनमेंट जो है इसको सेव करने के लिए में कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, डे बाय डे व्हाट यू ऑब्जर्व द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस दे इंक्रीज डे बाय डे, मीथेन, ये सारी गैसेस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर हो जाती हैं तो दे कैन नॉट रिलीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and they keep on revolving in the atmosphere of the earth, and in this way the temperature of the earth goes on increasing. So global warming जो है उसकी वजह से glaciers जो है वो melt हो जाएंगे, and all of this water it comes into the oceans, and ocean floor is not sufficient for capturing such a large amount of water. तो उसकी वजह से वो कहता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर जो है बड़े बड़े फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है। जोन डिप्लीशन अगर आप रोकना चाहते हो तो यू शुड रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। एसी इसका कम से कम यूज करें, ऐसा नहीं है कि एसी के बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो पुराने टाइम में भी जो सीजन थे वो सेम ही थे, तो हाउ कैन वी कोप विद द एनवायरनमेंट, तो सिमिलर थिंग्स वी हैव टू डू, ठीक बेटे। पॉल्यूशन इन एवरी फॉर्म जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे सामने, so we should take care that what are the contraceptive options that are available and guide the marriageable couples about this contraceptive options so that the population of the country will not increase. अगर population ज्यादा होगी तो demand भी ज्यादा होगी natural resources की। Okay, बेटे, benefits of wildlife, तो wildlife conservation is also come under environmental protection, ठीक है। We should respect our wild animals, we should maintain the security and the safe living of our wild animals, ठीक बेटे। तो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बहुत सारी फूड चेन्स का, फूड वेब्स का, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है, एनर्जी फ्लो में भी इम्पोर्टेंट रोल है। यू हैव लर्नड इन क्लास 10th ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट वी शुड नॉट डू हार्म टू दीज वाइल्ड एनिमल्स, वी शुड नॉट मेक द फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स। अगर हम उनके हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारी हैबिटेट्स में आ जाएंगे, ठीक है, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो यू हैव हर्ड सो मेनी न्यूज अबाउट व्हेन द वाइल्ड एनिमल्स दे एंटर इनटू द रेजिडेंशियल प्लेसेस एंड दे आर डूइंग एक्सीडेंट्स विद द पीपल। तो आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक बेटे। उसके बाद एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड आल्सो टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके लिए हम कई मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। वी शुड stop the use of fossil fuels, ठीक है, coal and petroleum, we should search for some alternative methods of energy, and we should stop some factories जिससे बहुत ज्यादा pollution होता है, ठीक बेटे। reduce waste जो जनरेट होता है उसको reduce करने के suitable method होने चाहिए हमारे पास। solar power energy को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, coal and oil जो है, ठीक है, clean coal and oil जो है इसको यूज करना है ताकि less pollution हो, ठीक बेटे। ऐसे व्हीकल्स टर्न को यूज करना है जिसमें से कम जो है एग्जॉस्ट का एमिशन होता और फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, एंड वी शुड आल्सो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि हार्मफुल जो भी गैसेस होंगे उसको ट्रीज ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक बेटे। लास्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू ओजोन लेयर डिप्लेशन, यू हैव लर्नड इन क्लास 10th टू। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है उसका मेन जो कॉज है दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे आर acting as the free radicals and they cause a chain reactions, ठीक है। वो ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्म होती है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करता है तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। बट एज यू नो दैट दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे रिलीज फ्री you can say free radicals of chlorine and fluorine which binds with the oxygen molecule and do not allow it to bind with nascent oxygen. So in this way ozone gas is not formed, और अगर ओजोन गैस जो है वो कम से कम बनेगी तो थिननेस हो जाएगी ओजोन गैस की, और इसे ही ओजोन होल बोला गया है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस ओजोन डिप्लीशन, तो उसके लिए उसने आपको बताया है कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है उसकी ड्राइविंग को आप अवॉइड करें। इफ सम ऑफ द पीपल हैव टू विजिट द सेम प्लेस, अपनी अपनी कार में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कार जो है उसमें 3 से 4 लोग जा सकते हैं अगर उनका ऑफिस सेम है, ठीक है। इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए, कोई भी ऐसे स्प्रेज जो है या एरोजोल्स आप यूज ना करें जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंटेंट हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करें बिकॉज उसमें भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक बेटे। इसके अलावा कहते हैं कि रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वहां पे भी खास तरह की रेगुलेशंस होनी चाहिए,
क्योंकि रॉकेट्स जो हैं जब वो एस्केप करते हैं अपने सेंटर में से, तो उसमें भी काफी सारा एग्जॉस्ट जो है गैसेस का निकलता है, आपने फिजिक्स में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, बैन द यूज ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है वो भी इस तरह के फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है। ओके बेटे, तो दैट्स ऑल अबाउट the World Environment Day. So in the last I want to say that if we save our environment, if we save our nature, then we are successful in saving our life. So thank you all of you. Okay बेटे, now we are starting with our topic. तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रह गया था. Yes children, so we are starting with our topic. So I am discussing with you the method of reproduction in case of angiosperms. So yesterday I have explained you the method. So मैंने आपको pistil and carpel के बारे में बताया था. Pistil and carpel is the female reproductive organ, and pistil और carpel जो है it has 3 components. Okay बेटे, stigma, style and ovary are there. So this stigma is actually, you can say it is the topmost part of the pistil. It acts as a landing platform for receiving this pollen grains. ठीक है, during the process of pollination. And what is a style? The style is a bridge-like connection between the stigma and the ovary. And through this style, when the pollen germinate, then it produces a pollen tube, and that pollen tube it moves through the style and enters into the ovary, where the ovule is there, and inside the ovule embryo sac is there. ठीक बेटे, तो आपको मैंने बताया था कि what you have learned कि the pollen grains which are actually the carrier of the male gametes, they are produced inside the anther. So when the anthers they mature, जब anther mature होता है, तो these pollen grains they comes out from the anther by bursting of the wall of anther. So when these pollen grains they comes out, they are actually in the group of 4. I want to say that four pollen grains they are joined together in a group. ठीक बेटे, that's why they are known as pollen tetrad. But later on what happens? The water that is present in these pollen grains, ठीक है, by virtue of which they are joined in a group of 4, it get dehydrated. So as a result, the pollen grain they get separated from each other, and each pollen grain, okay बेटे, now act as a you can say carrier of the male gamete. तो देखो पोलन ग्रेन जो है, अब आपको बताया था कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वो मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, इसके अंदर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं पोलन सैक्स में, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है दे अंडरगोस मेयोसिस, and as a result first pollen tetrads are formed, and then these all 4 pollen grain they get separated and each behave as an individual identity. Okay bete, so these pollen grains as soon as they fall on the stigma by the method of pollination, you have heard this term so many times in your previous classes. What is pollination? It is the process of transfer of the mature pollen grains from the anther to the stigma of the flower. ठीक है बेटे, एंथर जो है वहां से पोलन ग्रेन जो है जब स्टिग्मा तक फ्लावर के पहुंचते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. वी कैन यूज अ स्पेशल टर्म फॉर सेल्फ पॉलिनेशन हियर, इट इज ऑटोगैमी, एंड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन वी हैव 2 terms, one is जेटिनोगैमी एंड अनदर इज जीनोगैमी. ओके बेटे, स्पेलिंग्स क्या है इसके जेटिनोगैमी के? GETINOGAMY, जेटिनोगैमी, and xenogamy, that is XENOGAMY. Okay, what is the basic difference between जेटिनोगैमी and xenogamy? तो जेटिनोगैमी जो होती है उसके अंदर वो कहते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन आते हैं और उसी प्लांट पे जो दूसरा फ्लावर है उसके ऊपर फॉल कर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं उसके स्टिग्मा पे, और उसके बाद पोलन ट्यूब बनाते हैं. तो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, एक ही स्पीशीज का प्लांट है, तो इसको हम जेटिनोगैमी कहते हैं. एंड व्हाट इज जीनोगैमी? जीनोगैमी में प्लांट जो है वो सेम स्पीशीज का है, पर एक प्लांट पे एक फ्लावर लगा है, दूसरे पे दूसरा फ्लावर लगा है, तो फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है, फ्लावर जो है उसमें से पोलन ग्रेन्स जाएंगे एंड दे कम इन कांटेक्ट विद द अनदर प्लांट, सेम स्पीशीज का प्लांट है, उस पे भी फ्लावर लगा हुआ है, उसके स्टिग्मा पे फॉल करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, एंड देन दे फॉर्म द पोलन ट्यूब. ओके बेटे, तो व्हेन द पोलन ग्रेन दे जर्मिनेट,
जब पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करते हैं, सीधा डायग्राम दैट आई हैव शोन यू। तो देखिए व्हेन द पोलन ग्रेन दे जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, दे प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पोलन ट्यूब, एंड दिस पोलन ट्यूब इट प्रोसीड्स थ्रू द स्टाइल। ये स्टाइल में से जाती है पोलन ट्यूब, ठीक बेटे, एंड ये किसमें एंटर करती है, तो ये ओवरी जो है उसके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर रहा, सो मैनी पोलन ग्रेन्स दे आर जर्मिनेटिंग, ठीक है। एट द सेम टाइम एंड ऑल ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स व्हेन दे एंटर द ओवरी दे फाइंड सो मैनी ओव्यूल्स, एंड ईच ऑफ द पोलन ग्रेन दे स्टार्ट पेनिट्रेटिंग a particular ovule, ठीक बेटे। तो यहाँ पे एक ओव्यूल में मैंने आपको पोलन ट्यूब जाते दिखाई है। When it enters the ovule, what is present inside the ovule? तो inside the ovule an embryo sac is present. ओके बेटे, तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और जो एम्ब्रियो सैक है ना उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो 3 of the nucleus that are present at the micropylar end of the embryo sac, that is the you can say bottom end of embryo sac. So it contains the egg cell in the center and surrounded by 2 synergids. तो इसको हम egg apparatus कहते हैं, and that those 3 nuclei that are present at the antipodal end, which is the topmost part of the embryo sac, these all the 3 nuclei are known as antipodals, और 2 nuclei सेंटर में पड़े रहते हैं बड़े सेल में, ठीक है, सेंट्रल सेल में, और इन न्यूक्लिया को पोलन न्यूक्लियाई बोला गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब पोलन ट्यूब जो है वो ओरिजिनेट होती है, तो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है इट गोस इनटू द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब में चला जाता है, एंड इट डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है बाय माइटोसिस, माइटोटिक सेल डिवीजन से, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट आर द 2 न्यूक्लियस दे फॉर्म, so these 2 nucleus are larger nucleus which is vegetative nucleus and smaller nucleus which is generative nucleus. Okay बेटे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं होगी, एंड जनरेटिव न्यूक्लियस इट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन अगेन, इसमें फिर से माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। अब इमेजिन करिए कि पोलन ट्यूब के अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है एंड 2 मेल गैमेट्स हैं, और इस तरह की पोलन ट्यूब जो है इट एंटर्स इनटू द ओव्यूल्स एंड पेनिट्रेट्स द ओव्यूल, इट एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, और जैसे ही एम्ब्रियो सैक में जाती है ना, ये दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है। अभी सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो याद रखिए कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब के अंदर ही अपने आप डीजनरेट हो जाता है, and the remains of the vegetative nucleus it provides nourishment to the developing male gametes. Okay बेटे, तो only the male gametes they enter into the embryo sac. तो देखो मेल गैमेट कितने हैं, 2 male gametes are there, so 1 male gamete it comes in contact with the egg apparatus जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, तो सेंटर वाला एग सेल है ना उसके साथ फ्यूज करेगा फर्स्ट मेल गैमेट, और दूसरा मेल गैमेट जो है इट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक बेटे। तो एक जो है वो एग सेल के साथ जो फ्यूज करेगा, उसको कैसे पता लगा कि हियर द एग सेल इज प्रेजेंट, तो आपको बताया है कि सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एग सेल के साथ, एंड दीस सिनर्जिड्स दे गाइड दिस मेल गैमेट दैट हियर द एग सेल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सिनर्जिड्स के पास एक खास तरह का apparatus होता है which is known as filiform apparatus. Spellings are FILIFORM, filiform apparatus. ओके बेटे, ये गाइड करते हैं सिनर्जिड कि यहाँ पे एक्सेल प्रेजेंट है, तो फर्स्ट मेल गैमेट व्हेन फ्यूज विद द एक्सेल इट फॉर्म अ जाइगोट, क्योंकि मेल गैमेट भी 1n है और एक्सेल भी 1n है, और 1n + 1n इज इक्वल टू 2n, तो जाइगोट जो है वो 2n होगा। And this fusion of male gamete, first male gamete with egg cell is known as syngamy. Okay, but syngamy, that is SYNGAMY, syngamy. And what about the second male gamete? So second male gamete fuses with 2 nuclei, polar nuclei, which is present in the central cell. And you know that second male gamete is itself 1n, and both the polar nuclei they are also 1n + 1n. So 1n + 1n + 1n is equal to 3n. So a triploid structure is formed which is known as primary endosperm nucleus, ठीक है, PEN पेन बोलते हैं उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद में उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, डिविजन्स होती है, एंड इट बिकम्स द एंडोस्पर्म टिश्यू। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, यू हैव लर्नड इन क्लास 10th 2, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जाइगोट। ओके बेटे, अब आप याद रखेंगे कि एंडोस्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन
जो जाइगोट है उसके फॉर्मेशन से पहले होता है, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट तो पहले फ्यूज किया था ना, पर जाइगोट का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फास्ट होता है। ठीक है, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाई देयर इज अ रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एज कंपेयर टू जाइगोट? यस चिल्ड्रन, देखो बेटे बहुत सिंपल सा रीजन है कि एंडोस्पर्म जो है उसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, तो अगर जाइगोट पहले बन जाएगा तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा एंडोस्पर्म उसको, और इन द लैक ऑफ न्यूट्रिशन जाइगोट की डेथ हो सकती है। सो इसीलिए एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज अ लिटिल बिट फास्टर देन जाइगोट फॉर्मेशन, सो दैट एश्योरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देयर टू द जाइगोट। ओके बेटे, तो इस तरह से वो कहता है कि जो एंडोस्पर्म के साथ एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें सेकंड मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन एंड द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ है, तो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हियर टेक्स प्लेस। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट व्हेन फ्यूज विद एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, तो दूसरी बार कब फर्टिलाइजेशन हुआ, व्हेन द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लिया एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर which is primary endosperm nucleus and later form the endosperm. Okay, the fusion is known as triple fusion. Since fertilization takes place twice, that's why the process is known as double fertilization. Okay bete, so this is all about reproduction in case of angiosperm. I have written all the points in the presentation. I will send you this presentation later on. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल जो है वो आपको शो किया है। तो देखिए एंजियोस्पर्म्स जो है वो हमें स्पोरोफाइट की फॉर्म में नजर आती हैं, which have true roots, true stem, true leaves. ठीक है, flowers and fruits are also there because they are the flowering plants. Okay, तो what you see inside the flower, flower के अंदर आपको क्या नजर आता है, male reproductive organ which is stamen has 2 component, anther and filament, and female reproductive organ which is pistil or carpel or gynoecium has 3 components, stigma, style and ovary. And inside the ovary what is present, ovule is there, and inside the ovule what is present, embryo sac is there. Okay बेटे, अब देखिए यहाँ पर आपको उसने बताया है कि मेल गैमेटोफाइट जो है, ठीक है, जिसे हमने पोलन ग्रेन का नेम दिया है, मेल गैमेटोफाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, पोलन ग्रेन का कैरियर है। तो आपको पता है कि इन द एंथर, ठीक है, इन द एंथर a tetrad of the structure anther itself is, so how many lobes are there, 4 lobes are there which are known as pollen sacs, और पोलन सेक्स में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे, 4 के ग्रुप में होंगे, वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे। ओके बेटे, उसी तरह से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं एंड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो है उसके अंदर, ठीक है, न्यू सैलस टिश्यू होता है और न्यू सैलस टिश्यू के सभी सेल्स जो हैं दे डू नॉट अंडरगो मियोसिस, only some of the cells of the new thallus they undergoes meiosis which are known as megaspore mother cell, और जब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस में जाते हैं तो हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड, 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर, ठीक है, कितने मेगास्पोर जो है डीजनरेट हो जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की तरह यहाँ पे भी 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट एंड ओनली 1 सर्वाइव एंड दैट इज एक्चुअली द ओव्यूल। ओके, तो फिर ये ओव्यूल जो है वो आगे जाके जो है, ठीक है बेटे, मेगास्पोर जो है वो फिर आगे जाके जो है एम्ब्रियो सैक जो है इसको कैरी करते हैं, और एम्ब्रियो सैक जो है ये जो मेगास्पोर है ना इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं और फिर एम्ब्रियो सैक का रूप ले लेते हैं। ठीक बेटे, तो वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक बन जाता है। फिलहाल आप याद रखिए कि मेगास्पोर जो है उसके अंदर जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और उसमें माइटोसिस की वजह से 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो 3 न्यूक्लियस बॉटम में होते हैं उनको एपिप्रेटस बोला गया है, जो टॉप में होते हैं उनको एंटीपोडल्स बोला गया, और जो 2 सेंटर में रह जाते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। ठीक है बेटे, एपिप्रेटस में सेंट्रल वाला जो है इट इज एक्सेल एंड सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड, एंड ऊपर वाले तीनों एंटीपोडल हैं, सेंटर वाले जो 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो देखो एंथर में से जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, they fall on the stigma, they germinated on the stigma, they form pollen tube, और पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस चला जाएगा। ओके, एंड पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा,
लार्जर वन इज वेजिटेटिव, स्मॉलर वन इज जेनरेटिव। जेनरेटिव में फिर माइटोसिस फिर से होगा और 2 मेल गैमेट बनेंगे। अब पोलन ट्यूब में 3 चीजें हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स। आफ्टर सम टाइम द वेजिटेटिव न्यूक्लियस degenerate and the 2 male gametes they enter into the ovule, into the embryo sac, release into the embryo sac, fuse with egg cell and form zygote, first male gamete, and second fuse with polar nuclei and form endosperm. Fertilization takes place twice, first is syngamy, another is triple fusion, so that's why it is known as double fertilization. Okay bete, so this completes your chapter. So if you have any doubt, you can discuss your doubts with me. Okay, I will take one period for doubts. And I will also discuss the NCERT questions with you. Okay, बेटा? So go through this topic, gymnosperm, angiosperm. अगर कोई नहीं समझ में आया तो we will repeat it again. हम जो भी टॉपिक है उसको फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं